مسیح کے پیارے اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری ہو جس نے آج ممکن کیا کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی منادی کر سکوں، اور سب سے بڑھ کر خدا کے خادم چیئرمین آشر بنشا صاحب، کرائسٹ سالینور چرچ کے چیئرمین، اور اپنے استاد جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس جگہ پر خدا کے کلام کی منادی کروں۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے، انسان کو خدا نے اس لیے اس زمین پر بھیجا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ اور جب ہم لوگوں پر نگاہ کرتے ہیں اور وہ اپنے ہی غم، فکروں، خواہشوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر مگن ہے، لیکن خدا نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی بخشی ہے، سب سے بڑھ کر جو اس نے ہمیں سانسیں دی ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اور زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کبھی یاد نہیں آتا کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ لیکن خدا جن کو پسند کرتا ہے، جن کو بلاتا ہے، وہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں۔ آپ مبارک ہیں کہ آپ خدا کے قدموں میں ہیں، آپ بلائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج، مسیحیوں کو پتا ہے کہ آج خدا کا دن سبت ہے، ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے، لیکن اپنی فکروں میں، اپنی سوچوں میں گم ہے، نیند کے اندر، کاروبار کے اندر، لیکن نہیں پتا ان کو۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام میں سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر، ایک شخص برتلمائی جس کو خداوند نے اچھا کیا، اس کی آنکھیں ڈالی، تو کہتا ہے کہ پہلے میں اندھا تھا، اب میں دیکھتا ہوں۔ تو جب خدا ہمیں آنکھیں بخشتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح چلتے ہیں، دناؤں کی مانگ یا بیوقوفوں کی مانگ۔ کہیں ہم بیوقوفی کی زندگی تو نہیں گزار رہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، سال مہینے گزرتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک ایک دن جو ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ ہم کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں، کتنی دیر خدا سے رفاقت رکھتے ہیں، کتنی دیر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کتنا وقت دینا چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم خداوند کی دلہن ہیں، کلیسیا ہیں۔ خداوند کی دلہن کلیسیا جو ہے وہ اپنے دلہا کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اس کی بات کو رد نہیں کرتی، اس کے حکم کو بجا لاتی ہے، اور جو اس کی دلہن ہے وہ اس کے قدموں میں آتی ہے، اس کی بندگی کرتی ہے، اس کی ستائش کرتی ہے۔ آج خدا کے زندگی بخش کلام میں سے میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی دوسری آیت۔ یہ چیپٹر لمبا ہے لیکن اس کو صرف 2 ہی آیت تلاوت کریں گے۔ تو جماعت میں سے موقع ہے کہ کوئی بھی بلند آواز سے یہ تلاوت کر سکتا ہے۔
तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, लिखा है खुदा के कलाम में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। बड़ी खूबसूरत बात है, और मैं अक्सर इसको तीसरे या जनाजे के वक्त इसको सुनता रहा हूं, लेकिन जब एक संडे मैंने कलाम की कुछ और तैयारी की हुई थी, लेकिन ये हवाला जो है मैंने उसके साथ जोड़ा हुआ था कि मैं बाद में इस हवाले को बयान करूंगा। लेकिन जब मैंने कलाम शुरू किया तो खुदा ने इसी बात की पहले ही तिलावत कराई, और फिर जब इस कलाम की मैं तिलावत की तो मैंने जाना कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। अब ये फकीयों फरीसियों से ये बात करते हुए जो मजमा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता और उसके शागिर्द उसके साथ साथ चलते, और ये बात उनके साथ है, और ये बात आज मेरे और आपके साथ है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। दिल कब घबराता है? गर्मी से। गर्मी से तो अक्सर दिल घबरा जाता है। गर्मी बहुत हो ना तो कहते हैं दिल घबराए। ये उस गर्मी की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब हम हेरोदिस पर गौर करते हैं कि जब हेरोदिस ने खबर सुनी मजूसियों से कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और लिखा है कि यरूशलेम और सब लोग जो है वो घबरा गए। क्यों? इतना ही सुनकर के यीशु मसीह एक बादशाह पैदा हुआ है। जब उसने ये खबर सुनी कि एक बादशाह पैदा हुआ है, हेरोदिस भी घबरा गया है। ये गर्मी से नहीं घबराया, किसी घाटे से नहीं घबराया, लेकिन ये घबरा गया है कि अब जिन पर मैं हुकूमत करता हूँ, सल्तनत करता हूँ, जिनसे मैं टैक्स वसूल करता हूँ, जिनसे मेरा कारोबार दौलत बढ़ रही है, उनके लिए एक बादशाह पैदा हो गया। और बाकी सब लोग घबरा गए। हेरोदिस ने तो चलो, बाकी लोग क्यों घबराए? उन्होंने कहा कि अब एक नया बादशाह आ गया है, अब वो कैसी हम पर सल्तनत करेगा, कैसी हुकूमत करेगा। लोग घबरा गए। अब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या देता। अब क्या वाकई ही आसमान पर मकान है? जिन मकानों की ये खुदावंद यीशु मसीह बात करता है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे, और फिर वादा करता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। बड़ा खूबसूरत वादा है, और हम
सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। मकानों पर जब गौर करते हैं कि मकान तैयार करने के लिए, और जब हम यहूदी तालमूद रवायत को पढ़ते हैं तो वहां पर एक किस्सा हमें खूबसूरत मिलता है। और जब लड़की या लड़के का जब मंगनी होती है दोनों की, तो उनको इकट्ठे बिठाया जाता है, और एक तरफ लड़की के माँ बाप और दूसरी तरफ लड़के के, और उन दोनों खानदानों के अंदर एक मीट तय पाती है मंगनी के दौरान। और उस मीटिंग के दौरान एक वाकया रून मारता है, और वो वाकया यहूदी रवायत के अंदर लिखा गया है, तालमूद के अंदर, फलस्तीनी तालमूद के अंदर। और मंगनी के दौरान लड़की लड़के को बिठाते, और फिर लड़की का बाप एक रोल बना हुआ लिस्ट, जो लड़की की पैदाइश से लेकर उसके बड़े होने तक जितना खर्चा हुआ है वो लड़के के हाथ में देता कि इतना खर्चा इस पर हुआ है, वो तुम्हें अदा करना पड़ेगा। अब जब वो लड़का उस रोल को खोलता तो उस खर्चे को जो उसके अंदर लिखा हुआ है, जो रकम लिखी हुई है, अगर उसकी समझ में आता तो वो फौरी कहता कि मुझे कबूल है। अगर वो खर्चा ज्यादा है तो वो रोल फिर करके अपने बाप के हाथ में दे देता कि ये मुझसे ज्यादा है। हालांकि वो भी बाप ने पूरा करना है, लेकिन बाप की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है कि बाप क्या इस बात पर एग्री है। वो रोल अपने बाप को देता, और जब उसका बाप उसे खोलता, देखता कि इतना खर्चा है, तो वो कहता कि कबूल है। और जैसे ही उन दोनों खानदानों के अंदर इस कबूलियत का ऐलान होता, तो फिर उनको एक चांदी के गिलास के अंदर अंगूरों का रस लड़के को पेश कर देते, और लड़का उसके अंदर से गुड़ लगाकर अपनी दुल्हन जिसके साथ उसकी मंगनी तय हो रही है उसको दे देता, और वो उसमें से पीती, और फिर वो गिलास सभी रिश्तेदारों के अंदर जितने वहां पर बैठे होते हैं उनके दरमियान वो गिलास, वो अंगूरों का रस उनके अंदर। और इसके बाद एक ऐलान दुल्हा करता, और दुल्हा उठकर खड़े होकर उन सब लोगों के दरमियान कहता, मैं जाता हूं, ये दुल्हन के साथ वादा है जिसको उसने लेने आना है, और कहता कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और फिर आऊंगा और अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा। और ये ऐलान करके वो लड़का अपने घर चला जाता, फिर वो तैयारी करता। अब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को हमारे साथ बयान करते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे जीजो, क्या आसमान पर मकान है? मकान बने हुए हैं जिनके अंदर खुदा हमें ले जाना चाहता है। मेरे साथ मुकाशवा की किताब जी 21वां बाब
निकालें। और यहां पर तीसरी आयत के अंदर लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और वो खुदा आप उनके साथ उनका खुदा होगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत वादा है कि खुदा का खैमा कहां पर है? आदमियों के दरमियान। आदमियों के दरमियान है खुदा का खैमा। खुदा आप हमारे साथ रहेगा, सुकूनत करेगा, वो हमारे दरमियान रहेगा, क्योंकि उसका वादा है। जब आसमान पर गए और हम ईद पेंटिकोस्ट पर इस वादा को देखते हैं कि जब 50 दिन पूरे हुए तो रूह कुद्दुस उन पर नाज़िल हुआ। और जब खुदा पतरस और बाकी रसूलों के अंदर आ गया, उनके अंदर आकर रहने लगा रूह कुद्दुस की सूरत में, तो जो पतरस डरता छुप रहा था, यहूदियों से डर रहा था, वही पतरस खुदा के रूह से भरा हुआ उन्हीं यहूदियों के दरमियान जाकर खुदा की कलाम की मुनादी करता है और उनसे कहता है, सुनो ऐ इस्राएलियों, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया है, मार डाला है, खुदा ने उसी को जिंदा किया है और रूह कुद्दुस की सूरत में उनके अंदर है। आज खुदा मुझे और आपको वो मकान बनाना चाहता है, वो आप हमारे साथ अंदर रहना चाहता है। कहता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ था और फिर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। कब हमारे अंदर कब आएगा? अब जब मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबिया हो जाएंगे, हम मुकम्मल तौर पर पकीज़ा बनेंगे। पकीज़गी के अंदर जब होंगे तो खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा, क्योंकि 6वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। मैं अल्फा हूं, ओमेगा हूं, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। और जब 21वें बाब की पहली आयत पर गौर करते हैं तो वहां पर एक नया आसमान, नई जमीन मिलती है और फिर लिखा है कि समुंदर भी ना रहा। अगर पहला आसमान है, पहली जमीन है, और वो कहां गई? पहला आसमान कहां गया? और इसी आसमान को फिर से नया बनाने के लिए, इसी आसमान को, जमीन को
نیا بنانے کے لیے، اور نیا جب بنے گا تو خدا پھر اس کے اندر رہے گا۔ لکھا کہ پرانا نئے آسمان کے اندر خدا رہتا ہے، نئی زمین کے اندر رہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی کہ نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پہلا جو آسمان تھا وہ جاتا رہا، زمین جاتی رہی، اس نے سب کچھ نیا بنا دیا۔ اور نیا ہے کب بنتا ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، اور پھر ہم نئے بنتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے اندر سکونت کرے گا، تب ہمارے اندر رہے گا۔ بہت سارے دعویٰ کہ جی خدا ہمارے ساتھ، اور میرے خیال سے جب ان کی شکل و صورت، ان کی حالت دیکھی جائے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ خدا اس کے ساتھ بھی ہے۔ خدا ان کے ساتھ رہے گا جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بات ہی نہیں مانتے، اس کی بات سنتے ہی نہیں، خدا ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے اور ہم دوسری طرف کر لیتے ہیں، تو کیا پھر خدا ہماری مدد کرے گا؟ خدا ہمارے ساتھ رہے گا؟ کبھی۔ اسی زمین کو نیا کرے گا خدا، اپنے کلام سے نیا کرے گا۔ بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو، کیونکہ خدا جب اپنے کلام سے وہ ہمیں نیا بنائے گا، اور جو لوگ نیا آسمان نئی زمین بن چکے ہیں، ابراہیم کو بھی دو چیزیں دکھائی گئی جب اس میں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، اور ابراہیم کہتا ہے کہ خدا میرے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے، میں تو بے اولاد جاتا ہوں، تو خدا سے باہر میدان میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم آسمان پر نگاہ کر، اگر تو گن سکتا ہے تو گن، آسمان کے تاروں کو گن لے، ایسے تیرے لوگ ہوں گے۔ اور زمین کے اوپر سمندر کے کناروں کے ذرے جو ہیں، ریت کے ذرے جو ہیں، اگر ان کو گن سکتا ہے تو گن، تیرے لوگ ایسے ہوں گے۔ میرے عزیزو، خدا زمین پر اپنے لوگوں کو تیار کرے گا، اور یہاں سے تیار کر کے آسمان کی تاروں کی مانند ہمیں آسمان پر چمکائے گا، اور زمین پر بھی وہ ستارے چمک رہے ہیں، خدا کی خادموں کی صورت میں، کلام کی صورت میں خدا یہاں پر اپنے ستاروں کو چمکا رہا ہے۔ اور جب ہم لکھا ہے کہ سمندر بھی نہ رہا، وہ سمندر، اور یسایہ کی کتاب کے اندر 47ویں باب کے اندر لکھا ہے 20ویں آیت کے اندر کہ شریر جو ہے وہ سمندر کی مانند ہے۔ شریر لوگ جن کے بارے میں لکھا کہ سمندر بھی نہ رہا، پھر ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل کے اندر ہوگا، ختم ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ہلاکت کے اندر
उस बर्बादी के अंदर जाए जहां पर रोना, चिल्लाना और दांत पीसना हो। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, हमें अपने आप को नया बनाने की जरूरत है, क्योंकि मुकाशवा की किताब के अंदर नया आसमान, नई जमीन, जिनके अंदर खुदा आप सुकूनत करेगा। अगर मैं कह रहा था कि मकान, तो मुकाशवा की किताब के अंदर जब 21वें बाब उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि और मैंने उसमें कोई मक़दस ना देखा, उसमें कोई मक़दस घर, क्योंकि उसका घर, मकान मैं और आप सब हैं। वो खुदा हमारे साथ खुद सुकूनत करेगा, वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ बातें करेगा, हमारे साथ खाना खाएगा। शिगिर्दों के साथ उसने रूबरू खाना खाया। लेकिन आज हम जब रूहानी तौर पर उसको देखते हैं तो खुदा हमारे साथ शराकत करता है, वो हमारे साथ रहता है। जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं। और मेरे साथ आखिरी हवाला जल्दी से देखेंगे, 4 बाब, मुकाशवा 4 बाब, पहली दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निकाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज से अपने साथ बातें करते सुना। वो फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा, मैं वो बातें तुझे दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। मेरे अजीजों, हमें यूहन्ना की तरह आवाज है। ये यूहन्ना को कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। आज जब हम नया आसमान, नई जमीन बन जाएंगे, नए लोग बन जाएंगे, अलग किए हुए लोग बन जाएंगे, तो फिर ये आवाज मेरे और आप सब के लिए है, हमारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जो और बुजुर्ग जितने खुदा के कलाम को के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, ये उनके लिए कि यहाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर हमें बनाया जाएगा। हमें अपनी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जो वादा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जगह हमारे अंदर आकर तैयार करेगा, फिर हमें आवाज देगा। जब हम तैयार होंगे तो फिर आवाज है मेरे और आपके लिए कि यहाँ ऊपर आ जाए। हम सबको अपने आप के लिए तैयार करने की जरूरत है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबको बरकत। आमीन।